Namaskar, I'm Ashok Vyas. In today's Wide Angle with Ashok Vyas, we have a very special guest who is joining us from Jaipur. She has served in the capacity of minister, I would say, as former chairman of Finance Commission Rajasthan, economist in her own right, and consultant with several corporate leaders. Jyoti Kiran Shukla joins us from Jaipur. Jyoti ji, welcome. Namaste. Thank you for having me, Ashok. So, Jyoti, I would also take this liberty of sharing with our viewers that we studied together at Rajasthan College, and that was MA, Masters in Economics, and Correction, Rajasthan University. Rajasthan University. What did I say? Absolutely. Yeah, yeah, yeah. Rajasthan College. Oh, I'm sorry. So, Rajasthan University, while we were studying economics, what was it about economics that kind of pulled you through to go and do your master's in economics? So, if I summarize my question, what is it about economics that fascinates you? Choices. As you know, Ashok, you know the preliminary economics to the advanced economics. It's a science of choice. So basically, you that attracts me. Choices and optimization. I'm not talking about maximization. Choices and optimization. So I think if you just want to put it in one line, the choices to optimize. I think that's a very apt definition, and it rekindles my excitement in economics because most of the time we look at economics as something which is a compulsory thing in everybody's life. And since we are talking about India's budget, which was declared recently, that again is a matter of choice how government puts its priorities in the context of implementing the policies and executing the vision which they have for the country. So, jumping to Modi government's current budget presented by Finance Minister Nirmala Sitharamanji, what do you think are the key features of this budget? एब्सोल्युटली सो पहली बात तो ये कि ये अमृत काल का बजट है. दिस इज एज शी वेरी राइटली सेड इन अ बजटरी स्पीच दैट ये भारत के अमृत काल का बजट है. यानी अमृत महोत्सव, यू आर अवेयर, 75 ईयर्स के बाद में जो नेक्स्ट 25 ईयर्स है वो अमृत काल, यानी जब 100वें वर्ष में भारत पहुंचता है तब भारत का जो विजन है, तब भारत की जो कहना चाहिए कि भारत की दृष्टि है और विश्व की भारत की तरफ देखने की जो दृष्टि है, आई थिंक इट्स अ बजट फॉर दैट. इट इज अ पॉलिसी डॉक्यूमेंट फॉर दैट, इट इज अ रोड मैप फॉर दैट, एंड इट इज अ विजन डॉक्यूमेंट फॉर दैट. So that is my first thing, because it's not having any kind of myopia. It is a budget जो आत्मनिर्भर भारत को आधुनिक भारत की ट्रेजेक्ट्री में डाल रहा है. यानी आत्मनिर्भर भारत के लिए हम लगातार काम कर ही रहे हैं कि मोदी जी की जो पहली बार सरकार है उससे ये काम शुरू हुआ और उसकी गत्यात्मकता मिली इस वाले वर्जन में. जबकि भारत को आपने देखा कि उसने दो तरीके से काम किया इकोनॉमिक पॉलिसीज में. पहले उसकी सारी की सारी इकोनॉमिक पॉलिसीज एजाइल रही, एजिलिटी, एंड दूसरा रेजिलियंस. आप देख रहे हैं कि न केवल हमने कोविड के इस खराब दौर को, यानी अभी भी ये चैलेंजेस बाकी हैं, लेकिन फिर भी उसके जो आर्थिक चैलेंजेस हैं, अभी एक चंद दिनों पहले आईएमएफ की एक रिपोर्ट आई थी, एंड आई एम श्योर यू हैव नोटिस्ड, बिकॉज उस रिपोर्ट में भी भारत के मैक्रो फंडामेंटल्स की तारीफ की गई है. ये भी कहा गया है कि 9.2% की रेट ऑफ ग्रोथ है, और उसके साथ ही साथ ये भी कहा गया कि भारत के फाइनेंशियल सेक्टर्स ने बेहद अच्छा काम किया है. विश्व की दो सबसे तेज गति से बढ़ने वाली इकोनॉमीज में आज अगर भारत है, तो उसके पीछे कारण ये है कि मायोपिया ने, जिस समय मैं थोड़ा सा खुलासे से कहूँ कि जिस समय विकसित देश यानी आप लोग भी वहां पर सारी स्टिमुलस इकोनॉमी पर जोर दे रहे थे, ये देख रहे थे कि किस तरह से डिमांड बढ़ाने के लिए किस तरह से स्टिमुलस दिया जाए उस समय, और डिमांड के एक्सपेंशन पर काम करे, तो उसमें भारत ने बड़े इंटेलिजेंटली अपने सप्लाई साइड पर बेहतरीन काम किया. और पूरे के पूरे स्टिमुलस पैकेजेस के साथ में
एक चीज जो सबसे ज्यादा गहराई तक जुड़ी वो थी स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स। तो जहां पूरा भारत कोविड की इस त्रासदी से गुजर रहा था, उसके साथ साथ पूरा का पूरा आर्थिक आर्किटेक्चर स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स के साथ आगे बढ़ रहा था। So, और Jyoti, यही now कारण है। let me take the liberty of interrupting you. And you said it very right. And indeed, अमृत काल का बजट है और लॉन्ग टर्म विजन उसमें है, वो सब बातें अपने स्थान पर महत्व रखती हैं। और जितना बड़े लेवल पर निवेश इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए किए जाने की बात है, अगर रफ फिगर पकड़ें तो 40 लाख करोड़ रुपए का निवेश, और फिर उसमें डिफेंस का बजट भी 525,000, काफी लार्ज स्केल पे रेल और रोड डेवलपमेंट करने की बात भी है। लेकिन विजन के साथ साथ ये अमृत काल की संदर्भ को लेते हुए जो तात्कालिक मांग है आम लोगों की, जिसको लेके उनके बाकी कई हिस्से राहुल गांधी की संसद में जो संबोधन मैं रहा, आ रही उसके हूँ, बारे में हम उसमें भी मैं आ रही हूँ। थोड़ा सा बात करेंगे। लेकिन हाँ, सिर्फ ये जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, मैं सारे सारे बिंदुओं को बहुत सिलसिलेवार लेने वाली हूँ। मुझे पूरी उम्मीद थी कि ये कुछ जो नेसेयर्स हैं या जो जिनके स्केप्टिसिज्म का कोई अंत ही नहीं है, उनके सवाल एंटरटेन करने ही चाहिए, जरूर करेंगे। लेकिन पहले आपने चूंकि फीचर्स पे बात की, तो एक क्विकली मैं आपको फीचर्स का फटाफट एक बिल्कुल ब्यौरा दे दूं। स्वागत है, स्वागत सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात ये कि इसमें जरा भी ये बहुत बोल्ड बजट है। वो बोल्ड इसलिए क्योंकि पूरे विश्व में इस समय जब इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स अपना पूरा जोर पकड़ रहे हैं और आप देख रहे हैं उसको, अमेरिका तो गहराई से भुगत रहा है उस पूरी स्थिति को। तो इस परिस्थिति में भी भारत ने किसी भी तरीके से अपनी फिस्कल स्टिमुलस में जरा भी कोई कमी नहीं छोड़ी। गवर्नमेंट स्पेंडिंग में कोई कमी नहीं है। अगर आप देखेंगे, अभी अभी आपने खुद ही कहा कि कैपेक्स एक्सपेंडिचर की अगर आप बात करें तो इतना बड़ा कैपिटल एक्सपेंडिचर 34.5% जिसको एनहांसमेंट एक नजर में एक साल में आपको दिखाई दे रही है, ये काफी बड़ी घटना है। 7.5 लाख करोड़ तक का। और अगर उसमें भी अगर जो राज्यों को देने वाला 1 लाख करोड़ का अगर आप जोड़ देते हैं, तो वो 4% के आसपास, उससे भी ऊपर आता है, जो कि अब तक के इतिहास में सबसे बड़ी ग्रोथ है। तो नेचुरली पहली बात तो ये है कि ये ज्यादा माथापच्ची नहीं की गई कि भाई बहुत ज्यादा फिस्कल कंसोलिडेशन पे बहुत ज्यादा कड़ाई से कुछ काम किया जाए। लेकिन तब भी इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स को बहुत ध्यान में रखा गया। और यही कारण है कि इस साल का जो फिस्कल डेफिसिट है, उससे अगले साल का फिस्कल डेफिसिट का टारगेट 6.4 कम रखा गया, जो कि फाइनेंस कमीशन ने, सेंट्रल फाइनेंस कमीशन ने जिस तरह सजेस्ट किया था कि आने वाले सालों में वो 3% तक, 4% तक आना चाहिए, एफआरबीएम के हिसाब से 3% तक। तो दोनों बातों का बड़ा जबरदस्त जो कॉन्ट्रेरी चीजें हैं, देखिए डिमांड भी होनी चाहिए और फिस्कल डेफिसिट भी मैनेजेबल होना चाहिए। तो ये जो टाइट रोप वॉक थी, ये बड़े अच्छे तरीके से, बड़े कंसिस्टेंट तरीके से किया। तो बोल्डनेस और ट्रांसपेरेंसी और ट्रस्ट की पूरी जो, अब उसके बारे में तो मैं आपको बताना शुरू करूं कि कितने कंप्लायंसेस को खत्म किया, कितने ज्यादा जो बेकार के लॉस थे उनको रिपील किया। ईज ऑफ बिजनेस एंड ईज ऑफ लिविंग, इन दोनों चीजों को बढ़ाने का जो एक काम किया, यानी सबका विश्वास, जो प्रधानमंत्री जी हमेशा कहते हैं कि सबका विश्वास और सबका प्रयास, तो ये उन्होंने अपनी आर्थिक नीति में भी करके दिखाया। और इस बजट में स्पेशली इतना रिवोल्यूशनरी काम। अब देखिए, इनकम टैक्स रिटर्न्स भरने में अगर किसी से छोटी मोटी गलती हो जाती है, तो 2 साल तक आप अपनी उस गलती को खुद जाके सुधार सकते हैं। मुझे लगता है कि ये टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन में इतना बड़ा सुधार है, इतना बड़ा सुधार है। और इसको भी अगर हम साथ के साथ इस नजरिए से देखें कि अब तक का जो रेवेन्यू कलेक्शन है, वो इतना जबरदस्त कोविड के बावजूद भी हुआ। तो आप इकोनॉमी की प्रोग्रेस देखिए, सारे के सारे हाई परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स कोविड की पहले की स्थिति तक आ चुके हैं लगभग। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात कि आपका जो रेवेन्यू कलेक्शन है वो बहुत अच्छा है, तो आपके पास में एक्सपेरिमेंटेशन की, पब्लिक स्पेंडिंग की स्पेस अच्छी खासी है। तीसरी बात, आपका फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बहुत शानदार है। और आप पूरा का पूरा इस नजरिए से ये जो इकोसिस्टम है, मैक्रो फंडामेंटल्स का, अच्छे टैक्स रेवेन्यूज का, अच्छे रेवेन्यूज का, और उसके साथ साथ आपका जो पॉलिसी रिजीम है, उसमें आपकी एक दूरदर्शिता। तो मुझे लगता है कि मैं फिर अपने पॉइंट को रिपीट करूंगी कि आत्मनिर्भर भारत अब पूरे आत्मविश्वास से
आधुनिक भारत की तरफ अच्छा, तो वर्ष अब मैं ये आपको बार-बार इंटरप्ट करूँगा ताकि जितना समय है उसमें मैं ज़्यादा बातें आपसे जान सकूँ। तो हाँ, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या लगता है आपको इस बिल्कुल बजट? स्पष्ट है। हाँ, अब आप पहले आप एम्प्लॉयमेंट की बात कह रहे हैं तो सबसे बड़ी बात ये है कि जो भी आप इंफ्रास्ट्रक्चर में कैपिटल एक्सपेंडिचर करते हैं, जो भी, वो मल्टीप्लायर इम्पैक्ट से एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगा। दूसरी बड़ी बड़ी बात है कि जितना सेक्टोरल आपने निवेश करा है या आप करने की बात कर रहे हैं, उससे करीब-करीब 6 लाख नौकरियों का 100% जो बजट में बताया, उनकी पोटेंशियल दिखाई देती है। उसके अलावा जैसे आपने अगर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना योजना में 27% एक्सपेंडिचर बढ़ाया, तो आप जानते हैं कि एक सड़क के पीछे 5 नौकरियां, यानी ये तो वर्ल्ड बैंक का एस्टिमेट है। तो इस नजरिए से अगर आप देखेंगे तो इस बजट में कैपिटल एक्सपेंडिचर से, डिजिटाइजेशन से, स्किल फॉर्मेशन से और एमएसएमईज को जो पैकेजेस दिए, जिसको अभी अपन बात करेंगे कि जिन सेक्टर्स में कॉन्टैक्ट बेस पार्टिसिपेशन ज्यादा है, उनके लिए भी जो ईसीजीएलएस स्कीम को एक्सपैंड किया एमएसएमईज के लिए, तो उसमें सिलसिलेवार एक एक सेक्टर में आप देखेंगे तो नौकरियां बढ़ने की, रोजगार बढ़ने की संभावना है। केवल ये नहीं है कि सरकार नौकरी देने वाली है, सरकार ने इतना बड़ा जो स्टार्टअप्स का जाल दिखाया, आप देख रहे हैं कि अभी मैक्सिमम यूनिकॉर्न्स इंडिया में है। उस नजरिए से भी अगर आप देखते हैं तो युवाओं के लिए उद्यमशीलता की जो जो पोटेंशियल इस बजट में दिखाई देती है, दोनों तरीके से, फिस्कल पॉलिसी से भी, टैक्स रिफॉर्म्स के साथ में भी, और बाकी जिसको कहना चाहिए कि जिस तरीके से पूरा इकोसिस्टम तैयार किया गया। तो मैं फिर से गिनाती हूँ, स्टार्टअप्स में रोजगार, कृषि के क्षेत्र में रोजगार, प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में रोजगार, डिजिटल इंडिया के क्षेत्र में जो इतनी बड़ी क्रांति आ रही है, शिक्षा, स्वास्थ्य, एग्री डिजिटाइजेशन, और इसके अलावा सबसे बड़ी बात, भारत पहला देश होगा जो कि अपने खुद की डिजिटल करेंसी लेके आया। तो आपको नहीं लगता कि ये सारा का सारा जो इकोसिस्टम है, ये इतनी जबरदस्त तरीके से एम्प्लॉयमेंट की पोटेंशियल्स रखता है, एंटरप्राइज की पोटेंशियल्स रखता है। गवर्नमेंट का देखो काम जो गवर्नमेंट गवर्नमेंट का या काम लेट नौकरियां अस देना नहीं है। अच्छा, ज्योति एक मिनट, लेट लेकिन अस नौकरियां जी। क्रिएट हो, इसका पूरा वातावरण तैयार कर देना है, और तो ये उसमें बजट वातावरण सपोर्ट। जी, ज्योति ज्योति मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जो स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स हैं, या इवन जो बड़े उद्योगपति हैं, और एक आप आम भारतीय व्यवसायी से बात करते हैं, तो कई लोग अभी तक जीएसटी से नाखुश हैं। तो कई लोगों के मन में वो नोटबंदी से जो प्रभाव हुआ, उसकी भी कोई कसक है, लेकिन जीएसटी वाली जो स्थिति है, जिसका दूसरा रिजल्ट आपने कहा कि गवर्नमेंट का कलेक्शन, रेवेन्यू कलेक्शन बहुत सिग्निफिकेंट है। सो वन वे इट इज वेरी गुड। आई डोंट नो हाउ इट रिफ्लेक्ट्स एज डे टू डे वर्किंग ऑफ डिफरेंट एंटरप्रेन्योर्स, लेकिन मैं एज एन एंटरप्रेन्योर अगर इस बजट को देख रहा हूँ, व्हाट इज एक्साइटिंग ऑफरिंग और provision which I can see and feel good about being an entrepreneur with this budget 2022. एब्सोल्युटली, यू आस्क्ड अ वेरी गुड क्वेश्चन। और ये मुझे लगता है कि सबसे पहले इसमें मुझे कुछ आपको स्टेटिस्टिक्स बताना पड़ेगा। आपने कहा कि जीएसटी से लोग अभी तक भी संतुष्ट नहीं है, मुझे ये बात नहीं लगती, क्योंकि जीएसटी, देखिए, जब भी हम लोग कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात करते हैं, सारे स्टेट्स को एक साथ सहमति पर लाकर इतनी बड़ी व्यवस्था जीएसटी की खड़ा करना था, और उसमें लगातार सुधार होते रहे। मैं खुद जीएसटी काउंसिल की कई सारी मीटिंग्स में यहाँ राजस्थान सरकार के जो इंटरैक्शंस थे, उनमें शामिल हुई, इसलिए मुझे पता है कि इसमें कंसेंसस बिल्ड करना काफी मुश्किल काम था। तो उन सब हर्डल्स को दूर करते हुए जिस तरीके का वातावरण अभी तैयार है, मुझे लगता है कि पूरे 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 देश ने इसको पूरे तरीके से देखा भी है, समझा भी है, और इसकी आसानी को महसूस भी किया है। अब हालांकि मैं ऑफ द रिकॉर्ड बात कहूँ, लेकिन सिर्फ जनवरी जनवरी में अगर आप देखेंगे, मैक्सिमम टैक्स कलेक्शन है, और मैं उसके फिगर्स इंसिडेंटली मेरे पास अवेलेबल है, 149,000। दिस इज दी, मतलब ये अब तक के कोविड काल के पूरे समय को क्रॉस करते हुए ये मैक्सिमम जीएसटी कलेक्शन है। जो व्यवस्था चल ही नहीं रही, पसंद ही नहीं आती, उसमें कलेक्शन इतने शानदार कैसे हो सकते थे? मैं तो देश के करदाताओं के प्रति मुझे अभिमान है कि इतनी परिस्थिति में रहते हुए भी देखिए, उन्होंने। ये जो बात आप कह रहे हैं, कैसे कलेक्शन आ सकते हैं,
वही चीज तो उनके लिए मुश्किल है, क्योंकि पहले शायद इतना टैक्स नहीं देना पड़ता था, अभी वो बच नहीं सकते हैं, ऐसा है। ना बट ना ना, ऐसा मैं कहूंगी, अगर टैक्स इवेजन को लोग लेजिटिमाइज करना हैं तो नहीं, ये तो किसी भी नहीं, व्यवस्था को होने नहीं ये देना चाहिए। सुनिए, हमारे अभी भी जो व्यवस्था है वो 3%, अभी भी हमारी जीडीपी को देखते हुए अभी भी 3% और भी व्यवस्था है कि हम हमारी पोटेंशियल तक पहुंचे नहीं है। टैक्स इवेजन अगर कहीं से हो रहा है और अगर तंत्र उससे बचने का तरीका ढूंढ, तो दैट शुड बी वेलकम। आई थिंक दैट इज द एक्चुअल गोल। Thus I said that there is no myopia involved here, there is no populism involved here. It is efficiency and optimization. That is what it should be. And that is what is the structural reform which we wanted. We were wanting it, right? हम चाहते हैं कि लगातार टैक्सेशन का जो इवेजन है, इसी आधार पर तो मोदी सरकार इसी वायदे के साथ तो आई थी कि काला धन नहीं रहने देंगे, होगा तो वापस लाएंगे और स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स अच्छा, हाँ, को। ज्योति जी, जो आम कंज्यूमर है, वो देखता है कि इस बजट के बाद में जो चीजें मैं रोज यूज कर रहा हूँ, उनकी कीमतों पर क्या असर पड़ेगा। तो मैं मोटा मोटी जो देख रहा था, इमिटेशन ज्वेलरी, छाता, सिंगल मल्टीपल लाउड स्पीकर, हेडफोन, ईयरफोन, स्मार्ट मीटर, सोलर सेल्स, इस तरह की चीजें, एक्सरे मशीन और कई इलेक्ट्रॉनिक आइटम जो है वो महंगे होंगे, कस्टम ड्यूटी उन पर बढ़ा दी गई है। और जिन कुछ में कम होने के चांसेस हैं, वो ऐसी चीजें जो कम लोग यूज करते हैं, जिसके बारे में मुझे पता भी नहीं, मिथाइल अल्कोहल का क्या काम होता है, ऐसा। समझ के मैं आपको ये भी, डोंट गिव मी द लिस्ट, आई ऑलरेडी हैव इट। ये तो इसमें नो नो, मुझे मुझे ना, जी, नो मैं आई एम जस्ट टेलिंग यू, आई एम जस्ट, दर्शकों के लिए हाँ बता रहा हाँ, था जी। मैं जी जी। पूरा समझ बट गई, बिकॉज मुझे पता लग गया कि लॉजिक कहाँ जा रहा है। देखिए, जी बात ये है कि आत्मनिर्भर भारत की जब हम बात करते हैं, तो एक तरफ हम यहाँ की इंडस्ट्रीज को बढ़ावे का मौका देना चाहते हैं। वो मौका आप कैसे देंगे? ये तो बात क्लियर है कि केवल क्रेडिट ईजिंग से, और मॉनेटरी पॉलिसी इज लॉस्ट इट्स स्टीम। You have seen that in America, and you are seeing it in India too. Monetary policy, as an economist now, I'll speak that it is having certain limitations when the inflation is imported. Like Indian inflation is not cost based here, क्योंकि पूरे विश्व में ऊर्जा की कीमत बढ़ गई है, वॉलिटिलिटी बढ़ गई है, जियोपॉलिटिकल दिक्कतें हैं, सप्लाई चेन, मैं गिनाना शुरू करूं तो गिनाती फिर जाऊंगी। तो अंतरराष्ट्रीय जो दबाव है, उनकी वजह से कोई इन्फ्लेशन अगर बढ़ रही है, तो कंज्यूमर्स के साथ में सरकार सब्सिडीज एक हद तक दे सकती है और उनको रैशनलाइज कर सकती है। ये पहली बात। दूसरी बात, आपने कहा कि कस्टम एंड बाकी ड्यूटीज जो, जिन पर बड़ी चीजें महंगी हो गई, अगर इमिटेशन ज्वेलरी महंगी नहीं होगी अशोक, तो राजस्थान की ज्वेलरी पे जो कस्टम एंड एक्साइज ड्यूटी में आराम दिया गया है या छूट दी गई है, जिसे 5% तक लाया गया है यहाँ के व्यापार को उद्दीपित करने के लिए, वो कैसे होगा? भारत आत्मनिर्भर कैसे बनेगा? भारत का जो यहाँ का कुटीर और लघु उद्योग है, वो कैसे पनपेगा? उसको पनपाने के लिए और आई उसको गॉट यू। बढ़ाने के लिए, या या, या बिकॉज so आई that वांट is टू, the reason या every tax and every move that has been made is for आत्मनिर्भर भारत। और एक तरफ तो आप चाहते हैं रोजगार बढ़े, और जब रोजगार बढ़ाने के लिए फिस्कल पॉलिसी का उपयोग किया जाता है, तो आप कहते हैं कि जी, बात सही नहीं है। मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं कुछ कह नहीं रहा हूँ, लेकिन हमारे पास क्योंकि कम समय है, आपसे तो मतलब दो मेरा तीन बिंदु। आपसे जी मतलब जी, नेसेयर्स से है, या जो स्केप्टिक्स है, या उनसे है, बिल्कुल। या तो जिन्होंने, ज्योति, या हाँ, allow me to bring 2-3 more points before we have to wind up. उनमें से एक का संबंध विमेन ओरिएंटेड प्रोविजंस और या विमेन की Oh, ग्रोथ के I'd love लिए। to talk about it, या because इसमें जो आलोचना आई है वो इतनी अद्भुत है। 3 आलोचनाओं के बारे में बात कर दूं। कुछ लोग कह रहे हैं बजट कैपिटलिस्ट है। तो जिस बजट में गरीब कल्याण की योजनाओं में, मैं अगर आपको बताऊं, इतना जबरदस्त एक्सपेंडिचर है, राइट फ्रॉम प्रधानमंत्री ग्राम सड़क से लेकर के तो स्वास्थ्य सुरक्षा से। अब आप आंकड़ों का मुझे समय नहीं देंगे, आपको वाइंड अप करना है। तो ये पहली बात, ये एक एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली सिनिकल क्रिटिसिज्म नहीं है। नहीं, एक एक मैं तो मैं जानना चाह आपकी रहा बात नहीं, हूँ। जी मैं जी। जो दूसरे, मैं आपके माध्यम से जो हाँ दर्शकों को अवेयर कर रही हूँ कि जो अभी अफवाहों से या मिथिकल, यानी जो मिथ्स से जुड़े क्रिटिसिज्म चल रहे हैं, उनके बारे में। दूसरी बात ये कही गई कि इस बजट में महिलाओं के लिए कोई खास चीज नहीं। तो महिलाओं का केवल आप संबंध रसोई की गैस से क्यों जोड़ते हैं? स्टार्टअप से क्यों नहीं जोड़ते? आप स्टैंड अप इंडिया से क्यों नहीं जोड़ते? और मैं आपको फिगर्स के साथ बता रही हूँ कि इस साल जेंडर बजटिंग में, बिकॉज एज पार्ट ऑफ दैट कंसल्टेशन, सो आई कैन टेल यू विद सम कॉन्फिडेंस हियर,
कि जेंडर बजटिंग में पिछले साल से अब तक 11% की सीधी वृद्धि हुई है। यू नीड फिगर्स, आई हैव फिगर्स विद मी। 11% से मैं आंकड़े छोटे मोटे बता रही हूँ यहाँ, क्योंकि दर्शक बोर नहीं होने चाहिए इतने सारे आंकड़े देख के, बोलेंगे आपने एक अच्छा से बुलाया जो आंकड़ों की भरमार लेके आ गया। तो मैं ये बता दूं कि पिछले साल से अब तक, और 3 जो प्रमुख योजनाएं महिला सुरक्षा को लेकर, पोषण को लेकर, न्यूट्रिशन को लेकर, और साथ ही साथ वात्सल्य, यानी महिला के जो सारे रोल्स हैं समाज में, उनको भी देखते हुए पूरा लाइफ साइकिल किस तरह सुरक्षित किया जाए, उसको एक 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 धागे में पिरो करके प्रस्तुत किया है। आप जानते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ माननीय प्रधानमंत्री जी का नारा था, और आज उसको लेकर के इतने जबरदस्त तरीके से देश में महिला से रिलेटेड विमेन लेड डेवलपमेंट की बात है। तो ये यदि मैं ये भारत। जी, मुझे मुझे ये आपके साथ जोड़ने दें, अपने दर्शकों तक पहुंचाने दें कि मार्केट हैज रिस्पॉन्डेड वेरी फेवरेबली एंड पॉजिटिवली टू द बजट, और कई जो निवेशक हैं उनको बहुत फायदा हो गया, और रिकॉर्ड फायदा विद इन अ डे, की जैसे ही बजट डिक्लेयर हुआ तो जो भी क्या आपके मेजरमेंट्स हैं, यूनिट सेंसेक्स क्या, वो सब के कारण लाभ हुआ। पर मैं एक दूसरे विषय के बारे में, हालांकि वो यहाँ विषय थोड़ा सा लगता है, जोड़ दूं कि ये इसका मतलब ये सेंटिमेंट को बताता है। ज्यादातर मार्केट के उस पर बहुत भरोसा नहीं करना चाहिए, आप सही कह रहे हैं, लेकिन तभी भी मार्केट का उछाल आना सेंटिमेंट बताता है, उद्यमिता का सेंटिमेंट है। ये नए भारत का, आधुनिक भारत का उत्साह का सेंटिमेंट है, जो मार्केट से दिख गया। तो आपके पास 2-3 मिनट हैं, और जो सवाल मैं पूछ रहा हूँ वो हालांकि लंबे उत्तर की मांग करता है, कोशिश करें संक्षेप में। जो सेंट्रल स्टेट रिलेशनशिप है, वो पिछले कुछ समय से काफी कॉम्प्लिकेटेड ट्रैक पर है, ऐसा लगता है। तो जब नेशन अपना बजट डिक्लेयर करती है, और स्टेट्स उसको किस तरह इंप्लीमेंट करती हैं इन कोऑर्डिनेशन विद द मेन फ्रेमवर्क लेड आउट बाय द दैट्स अ गुड सेंट्रल गवर्नमेंट। दैट्स अ गुड क्वेश्चन। चूंकि मैं फाइनेंस कमीशन के साथ रही, इसलिए कुछ कॉन्फिडेंस से इसका जवाब दे सकती हूँ। सबसे पहले तो 70 साल की लीगेसी है, यानी जो सेंटर स्टेट रिलेशंस में इतना जबरदस्त एक, जिसको कहना चाहिए अजीब सा तनाव जनरेट हुआ, वो इसलिए क्योंकि इसमें 70 साल का एक प्रकार का प्रक्रियाजन्य विरोध, जो एक एक सिंथेटिक विरोध खड़ा कर दिया गया, तरीके से प्रक्रिया सही नहीं करी गई। हम लोग आए तो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात की, एक कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म एंड कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। अभी 3 बातें जो सेंट्रल स्टेट के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पहली बात तो ये जो 1 लाख करोड़ का जो कैपिटल फॉर्मेशन है, अगर राज्य वो करना चाहेंगे तो केंद्र उसमें लगातार सहायता देगा, ये पहली बात। दूसरी बात है कि जो अभी महत्वपूर्ण तरीके से फाइनेंस कमीशन ने बताया था कि अगर स्टेट गवर्नमेंट्स क्राइसिस में है तो उनको 4% तक का हम ये दे सकते हैं, यानी जो उनकी सीमा है एफआरबीएम के अंतर्गत, जो ऋण लेने की सीमा है उसको भी बढ़ा दिया गया है। तो ये 2 बातें बहुत महत्वपूर्ण है, और पूरा का पूरा जो कि 1 लाख करोड़ का ये ग्रांट इन एड और बाकी जो हम जो भी प्रोविजंस देख रहे हैं, उससे स्टेट में पैसे की आवक बढ़ेगी, उनके डिस्कॉम्स के कारण उनकी जो तकलीफें हैं वो घटेंगी, और स्टेट की इकोनॉमी भी लगातार ग्रो करेगी। इसके अजय अलावा जी, इसके अलावा एक छोटी सी बात, पर्वतमाला जो 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 हमारी बॉर्डर स्टेट है, उनके उनके लिए किया गया काम। और दूसरा महत्वपूर्ण बात है कि एक जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए, जिसको कि पीएम डिवाइन करके कहा गया है, वो भी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए भी एक विशेष प्रोविजन है, जिस पर मैं अगले किसी अंक में, क्योंकि आंकड़े मेरे पास बहुत सारे हैं, तो मैं बहुत सारी नहीं, बात पर करना वो भी चाहूंगी। महत्वपूर्ण विषय है, हम कभी उस पर चर्चा करेंगे। मगर चलते चलते बहुत संक्षेप में, अगेन, पॉलिटिकल रैमिफिकेशन हर एक चीज के होते ही होते हैं, और चुनाव एकदम समीप हैं। क्या लगता है आपको, ये बजट वोटर्स को बीजेपी के बारे में फेवरेबली सोचने की अगर ऐसा प्रेरणा होता देगा? तो बहुत पॉपुलिस्ट बजट बना के बजट से आकर्षित करने की बात की जाती, लेकिन माननीय वित्त मंत्री ने बिल्कुल भी इस प्रकार का कोई प्रयत्न नहीं किया कि बजट के कारण, हमारी नीतियों के कारण हमें वोट मिलेंगे, मैं सर्टेन हूँ। लेकिन पॉपुलिस्ट बजट देकर के देश की अर्थव्यवस्था को किसी तरीके का फिस्कल नुकसान पहुंचाने का कोई भी ऐसा मेजर, जिसको आप कहना चाहिए कि जन लोक लुभावन बजट पेश कर दो ताकि चुनाव जीत जाओ, ना 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 ना, ऐसा कुछ भी
बजट में नहीं है। बजट बहुत ही रैशनली, बहुत बोल्ड तरीके से, बहुत ही एंटरप्रेन्योरियल रिस्क लेते हुए भी मैं कहूंगी, जनता की अपेक्षाओं का बजट है। ये भारत की आकांक्षा का बजट है और इसलिए ये भारत के अमृतकाल तो का बजट है। बहुत धन्यवाद। ये जनता की लॉन्ग टर्म अपेक्षाओं को संबंध से को ध्यान में रखता है, लेकिन जो इमीडिएट पॉपुलिस्ट जो एक्सपेक्टेशंस होते हैं शायद उन पर ये No, खरा but न good उतरे। politics should lead to good economics at some point of time. And this government is trying hard. नहीं, मैं अब आपके तरफ से आदर्शवादी बात नहीं करके जो ग्राउंड रियलिटी है, एक आम मतदाता को अगर विपक्षी दल के नेता इस तरफ खींचेंगे और ऐसा सोचने के लिए कहेंगे तो उनके पास में मसाला है। दैट ना इज ना वेयर ना, वी लीव। इस मसाले में कोई सुगंध नहीं है, इतना मैं कहूंगी। तो चलिए, तो आने वाले समय में देखते हैं कि क्या क्या प्रभाव इसके होते हैं भारत की प्रगति पर, और भारतीय जनता पार्टी के आने वाले समय में मतदाताओं से अपने लिए सकारात्मक वोट हासिल करने पर ज्योति जी, आपने बहुत ही संक्षेप में भी और बहुत सारे आयाम इस बजट के हमारे दर्शकों तक पहुंचाए। आपका बहुत सारा आभार व्यक्त करते हुए नमस्कार। आप, थैंक यू आपने वेरी मच। थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी हियर। तो हमारे साथ थी जयपुर से जुड़ी फॉर्मर चेयरमैन फाइनेंस कमीशन राजस्थान सरकार, प्रोफेसर के रूप में भी और कंसल्टेंट के रूप में भी सक्रिय इकोनॉमिस्ट डॉक्टर ज्योति किरण शुक्ला जी। फिर एक बार आपका आभार, धन्यवाद, मंगल कामनाएं। आपका और भी आभार। आप सभी का आभार हमारा साथ देने के लिए। शुभकामनाओं के साथ अनुमति।